नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। वक्त तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हंगामा, अपोजिशन के अरकान ने किया वॉकआउट। संजय राउत को हत्या की इज्जत मामले में 15 दिन की सजा, 25,000 का जुर्माना। सौम्याकीर्त ने किया खुशी का इजहार। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई दवाएं, पैरासीटामोल, शुगर, हाई बीपी, कैल्शियम D3 की गोलियां भी शामिल। लोगों में तशवीश की लहर। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी दरम बरम, पीएम मोदी का पुणे का दौरा हुआ रद्द। और इतालवी वजीर आजम मौलोनी ने की फलस्तीन की हमायत, तो सीनेट को कर रही थी खिताब। वक्फ बोर्ड बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हंगामे के सबब खत्म हो गई। इस मुंबई के एक बड़े होटल में होने वाली इस मीटिंग के दौरान अपोजिशन के अरकान नाराज होकर मीटिंग से उठकर बाहर चले गए। खबर है कि मीटिंग के दौरान शिवसेना के MP नरेश महसके और TMC के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी के बीच जबरदस्त बहस हुई। बहस की शुरुआत उस वक्त हुई जब गुलशन फाउंडेशन की तरफ से एक तजवीज़ पेश किए जाते वक्त कल्याण बनर्जी ने मुखालफत की। इसके बाद बनर्जी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हम आपको बता दें कि गुलशन फाउंडेशन वक्फ बिल की हिमायत कर रही थी। वहीं नरेश महसके ने कल्याण बनर्जी को रोकने की कोशिश की। दोनों फरीकैन में माहौल गर्म होने के बाद कमेटी के सदर ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की। आखिरकार अपोजिशन के सभी नुमाइंदों ने एहतजाज करते हुए मीटिंग से बाहर निकल गए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वजीर आला सिद्धरमैया की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मुबैना मूडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गवर्नर की मंजूरी को चैलेंज किया था। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट बसवराज बोम्मई ने कहा कि इस मामले की आजादाना जांच के लिए मौजूदा सरकार को लोकायुक्त को पूरी छूट देनी चाहिए। कर्नाटक असेंबली में अपोजिशन और बीजेपी के लीडर R अशोक ने सिद्धरमैया के इस्तीफे का मुतालबा किया है। मरकजी वजीर probity ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा that है कि इतने बड़े we पैमाने पर हुए expect घोटाले के लिए in public वजीर आला life. को बगैर किसी शक के अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। Yeah. See, if you want a fair and free inquiry and further investigation, since Loka Ayuktha, all the police officers are still being posted by the Home Ministry and all the IPS officers are been transferred by none other than the Chief Minister himself, where he has posted about 1 month back all the officers. To have a fair inquiry with this background, I think if Loka Ayuktha should inquire, then he should give a free hand by resigning the present CM post. Sir, still he is telling that it is a conspiracy of a BJP to destabilize. What he says is not important. What High Court says, what Sessions Court says is important. Directly they told it is a scandal. That's why court is saying, not BJP, not anybody. Court is saying it is a scandal. So that's why we are asking the resignation of Mr. Siddaramaiah. When court is given the verdict, Siddaramaiah naturally is no right to sit in that seat. That's why we are demanding the resignation. Also saying many are demanding in Congress. Said that Loka Ayuktha is an independent investigating agency. No, who will appointment the police officer? Government is appointing the police officers. How can it become independent? The Loka Ayuktha is independent, but enquiry officer is not independent. You are putting pressure for FIR to be registered as soon as possible. 100%, no doubt at all. Already court given verdict, FIR has to register. You are also saying there are many aspirants in Congress itself. Yeah, 100%. Yeah, more than 10. It is the issue here is of the highest level of probity that we expect in public life, and the very fact that a judgment has come out. There have been issues with regard to the land scam, where a party that talks about service to our Dalit community, that same party's chief minister indulges in
siphoning away and capturing poor Dalit families' land, a scam of such high proportions, certainly the Chief Minister must tender his resignation without doubt. So my last मूडा मामले के खिलाफ बीजेपी जेडीएस मुजाहरे कर रही है। कर्नाटक के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने कहा है कि दिल्ली से लेकर गांव तक कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सिद्धरमैया के साथ खड़े हैं। पार्टी का सदर होने के नाते वो कह सकते हैं कि वजीर आला के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। कर्नाटक सरकार में वजीर प्रियांक खरगे ने कहा है कि ये कुछ और नहीं बल्कि सियासत से मुतासिर एजेंडा है, जैसा कि झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु और केरल में हुआ। हम इसका कानूनी तौर पर मुकाबला करेंगे। I think it is all a political drama which they are trying to do. I think there are a lot of cases against various central ministers and other leaders of the BJP, either in a different part of the country. All of them resigned. If that is the case, there is no need of CM resigning. The entire party from the Delhi to the village stands with him. Sir, what about Koliwada statement, sir? Being a party president, I am telling you, there is no question of CM resigning. Sir, another... No, first, they should have the morality to protest. Today, they are seeking Mr. Siddaramaya's resignation on what basis? Because the court has ordered an investigation. Whereas, Mr. Kumaraswamy, the investigation is already, they are asking for prosecution, they are not talking about it. Mr. Yediyurappa's case, where he is a POXCO accused, they are not talking about it. Mr. Vijendra, the BJP state president, he is accused of money laundering through shell companies, they are not talking about it. Mr. Muniratna, their MLA, former minister, is currently in jail for abusing Dalits and women, honey trapping with HIV patients, they are not talking about it. If at all they have any sense of moral values left, first they should resign, they should step down and then talk about Mr. Siddaramaya. Mr. Siddaramaya has done no wrong. This is nothing but a politically motivated agenda, just like how it's happened in Jharkhand and Delhi and Tamil Nadu and Kerala. They're using the governor office as a BJP headquarter and we'll fight it out legally. Sir, BJP leader... मझगांव के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बीजेपी लीडर किरीट सोमैया की अहलिया डॉक्टर मेघा किरीट सोमैया की शिकायत पर हतक इज्जत के मामले में शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत को कसूरवार ठहराया है। संजय राउत को कसूरवार ठहराए जाने पर किरीट सोमैया की अहलिया मेघा सोमैया ने कहा है कि वो इस फैसले से बहुत मुतमईन है। किरीट सोमैया ने कहा कि संजय राउत ने उनके खानदान के खिलाफ 100 करोड़ की बदउनवानी का इल्जाम लगाकर जो कैंपेन चलाई थी, जज ने उन्हें सबक सिखा दिया और सजा दी। मैं समाधानी हूँ, कोर्ट का मैं आभार मानती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया अच्छे से चलाई और मुझे जो मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए और मैं अभी ऊंचा सम्मान से आगे घूम सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ। जैसे किरीट जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ये पहला मौका नहीं था जब आपके ऊपर आरोप किए गए थे संजय राउत की तरफ से, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद उस तरह के आरोप होना संजय राउत बंद तो होने चाहिए, लेकिन आदत से मजबूर होता है आदमी कभी कभी। उद्धव ठाकरे जी के निकटतम सहयोगी राज्यसभा के इतने सीनियर मेंबर, उन्होंने सोमैया परिवार, प्रोफेसर डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया, उनके खिलाफ 100 करोड़ के भ्रष्टाचार करके जो अभियान चलाया था, उसके विरुद्ध में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। उन्होंने कुछ न किया, इसलिए 18 मई 2022 को मेधा सोमैया ने ऑफिशियल लीगल कंप्लेंट फाइल की। 28 महीने इसकी सुनवाई चली। आज मैजिस्ट्रेट मझगांव कोर्ट के आरती कुलकर्णी, इन्होंने संजय राउत को गिल्टी कन्विक्ट किया है
15 दिन की सजा इम्प्रिजनमेंट सुनाई गई है। पुलिस ने तुरंत संजय राउत को कब्जे में लिया है। अब अगर संजय राउत ने उच्च न्यायालय में अपील फाइल करने का निर्णय की लिया तो उसको जामीन दिया जाएगा। साथ में 25,000 रुपए का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया गया है। वो 25,000 रुपए शिकायतकर्ता मेधा तोमैया को दिए जाएंगे। ये केस में हमारे साथ तोमैया परिवार के साथ, क्योंकि संजय राउत ने प्रोफेसर डॉक्टर मेधा तोमैया, नील तोमैया, किरीट तोमैया के मेरी मां के विरुद्ध में इतने दिनों तक जो एक कैंपेन चलाया था, आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उसको सबक सिखाया। का कहना यह है कि मरकजी वजीर रामदास अठावले ने बदलापुर एनकाउंटर पर कहा है कि जैसा कि हाईकोर्ट ने कहा है कि बदलापुर एनकाउंटर की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने भी इसकी जांच का यकीन दिलाया है। इस मामले की पूरी जांच होगी और अगर कोई पुलिस अफसर कसूरवार पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो बदलापुर का जो इनकाउंटर है, ये इनकाउंटर के बारे में मुंबई हाईकोर्ट ने भी बोला है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वहाँ पुलिस का कहना तो ये है कि जो गाड़ी से पुलिस उनको ले जा रही थे, उनका कहना ये है कि भाई पुलिस जो ड्यूटी पर मतलब अंदर गाड़ी में थे, तो ये जो आरोपी अक्षय शिंदे था, इन्होंने मतलब पिस्तौल उनका छीन लिया और उनके ऊपर गोलीबारी करने का प्रयत्न कर रहा था। इसीलिए हमको उनके ऊपर गोली चढ़नी पड़ी, ऐसा उनका कहना है। तो सरकार ने भी इसकी पूरी जांच होगी ऐसा आश्वासन दे दिया है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके संबंध में जांच होनी चाहिए इसी तरह की आदेश दे दिए हैं। उसके मुताबिक इसकी पूरी जांच होगी और इसमें जो भी अगर पुलिस वाले कोई दोषी होंगे तो उनके ऊपर जरूर सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई होगी। आज झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन के जरिए आरएसएस का मुआवजा चूहे से करने पर बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हम भी तो आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं। जब वो चूहे से इतना घबरा रहे हैं तो इतने बड़े झारखंड की हिफाजत तो कैसे कर पाएंगे। अब आपको बता दें कि हेमंत सोरेन का कहना है कि आरएसएस चूहे की तरह झारखंड में घुसपैठ करके उसे बर्बाद कर रही है। उन्होंने लोगों से अपने गांव से आरएसएस को भगाने के लिए भी कहा है। आज देश के किसानों को उनकी आय दुगुनी करने का, एमएसपी बढ़ाने का पैसा इनके पास नहीं है। आज देश के बूढ़े बुजुर्गों को बुढ़ापे का सहारा, उसका लाठी जो पेंशन के रूप में होता है, वो देने का पैसा इनके पास नहीं है। इस देश की आधी आबादी को सशक्त करने का, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हिम्मत देने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन अपने बड़े बड़े व्यापारी मित्रों का कर्जा माफ करने के लिए लाखों अरबों रुपया इनके पास भरा पड़ा। चूहों से बचकर रहना है क्योंकि ये शराब और बाकी चीज़ें लेकर आए हैं, आपको बच के रहना है। अरे हम लोग क्या लेकर आए हैं भाई? अब बताओ, जो व्यक्ति चूहा से इतना डर रहा है तो झारखंड की ओर अच्छा क्या प्रकार कर पाएगा। जो एक तरफ वो कह रहे हैं कि आरएसएस चूहा है, हम भी तो आरएसएस से ही जुड़े हुए हैं, हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। तो जब वो व्यक्ति चूहा से इतना घबरा रहे हैं, इतना घबराए थे, तो इतना बड़ा विशाल झारखंड की वो कैसे रक्षा कर पाएंगे। अद्वियात के मेयार पर कंट्रोल रखने वाले मरकजी इदारे सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि पैरासीटामोल, पैंडी और कैल्शियम सप्लीमेंट समेत 53 दवाएं क्वालिटी चेक में नाकाम हो गई हैं। इस रिपोर्ट के बाद इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर तशवीश पैदा हो गई है।
कला से हरियाणा के करनाल में कांग्रेस के पार्लिमानी रुकन और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि जब उन्हें पता चला कि हरियाणा से 15 से 20 हजार लोग अमेरिका गए हैं तो वो हैरान रह गए। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उनके दिल में उठा है। और फिर वो डैलस में हरियाणा के नौजवानों के एक छोटे से घर में जाकर मिले। आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15 से 20 लोग सोते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। टेक्सास में हरियाणा के युवाओं से मुझे मिलना चाहिए। पता नहीं आपने वीडियो देखा नहीं देखा? देखा। मैं आज आपसे उस वीडियो के बारे में बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर आज आप हरियाणा को समझना चाहते हो तो जो भी समझना है उस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले जब मुझे बताया गया कि हरियाणा से हजारों लोग, 15-20 हजार लोग अमेरिका गए हैं, मैं हैरान हुआ। हरियाणा से इतने लोग अमेरिका क्यों जा रहे हैं, मेरे दिमाग में सवाल उठा। और फिर मैं डैलस में आपके भाइयों से एक छोटे से घर में जाके मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा, आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले। और फिर हम पैनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में गए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया, और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भैया ये जो आपने सफर किया है, आप अमीर लोग तो नहीं हो। इस सफर के लिए, प्लेन टिकट के लिए, नाव के लिए, गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने किसका पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा, भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है,
आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए, कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि राहुल जी मैंने ट्राई किया, फेल हो गया। बेरोजगारी है, महंगाई है। और जब उन्होंने मुझे बोला, मुझे दुख हुआ, उन्होंने बोला राहुल जी हरियाणा में हमारे जैसे लोगों के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर एक युवा गरीब है, अरबपति का बेटा नहीं है, तो ना उसे बैंक लोन मिल सकता है, ना वो बिजनेस चालू कर सकता है, ना वो पब्लिक सेक्टर में जॉब पा सकता है, ना वो आर्मी में जा सकता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे दरवाजे आपके बंद कर दिए गए। यहाँ पे मतलब कांग्रेस लीडर कुमारी शैलजा ने कहा है कि राहुल गांधी के हरियाणा में आने से लोगों का जोश बढ़ गया है। बीजेपी की 10 साल की सरकार से लोग काफी परेशान हैं और आज लोग उसका मुतबादिल कांग्रेस में तलाश कर रहे हैं। है राहुल जी के आने से, और आपने देखा कि असंध हलके में लोगों का जो उत्साह है वो पूरा हमारे यहाँ जो हमारे कैंडिडेट हैं शमशेर सिंह गोगी जी, उनके प्रति बहुत उत्साह, राहुल जी के प्रति बहुत उत्साह, और गोगी जी पूरे भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं। मैम हरियाणा में बदलाव की लहर बह रही है। भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की जो सरकार रही, लोग उससे त्रस्त हैं, जन विरोधी सरकार रही, और आज लोग विकल्प कांग्रेस में देख रहे हैं। जिस तरह मैं आज यहाँ इतनी सारी जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार आने पर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की सालाना किस्त 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करेंगे। जम्मू में बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा बनेगा और जम्मू में मेट्रो चलेगी। मैं आज यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं आप हमारे बलवंत सिंह मनकोटिया को जिता दो। मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान जो 6,000 मिलता है उसको 10,000 करेंगे। ऊंचाइयों पर जो घर है, जैसे हमारा चनैनी है, वहां बिजली के दर में 50% की राहत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जम्मू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो आएगी। हर साल आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर का जीर्णोद्धार हम करने का काम करेंगे। तवी पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, रणजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना करेंगे, अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली के वजीर आला आतिशी आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों के हालात का मुआयना किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो तातुल में पड़े सभी काम शुरू करेंगे। यहाँ की टूटी हुई सड़कें फौरी तौर पर ठीक कराई जाएंगी। 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई।
दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे। जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूं जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू करेंगे। महाराष्ट्र में भारी बारिश के सबब वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का पुणे दौरा रद्द हो गया। दरअसल महाराष्ट्र के कई शहरों में भारी बारिश के सबब हालात तशवीशनाक हैं। सड़कों पर पानी भर जाने से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। पीएम मोदी जुमरात को रियासत का दौरा करने वाले थे। मुल्क की इक़्तिसादी राजधानी मुंबई और उसके नज़दीकी ज़िलों में शदीद बारिश से अवामी ज़िंदगी दरम भरम है। महकमे मौसमियात ने जुमरात को ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। शहर के कई हिस्सों में बुध की दोपहर से ही बारिश जारी है। ऐसे में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इन इलाकों में भारी बारिश का अंदेशा जाहिर किया गया है। IMD के साइंसदान डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा है कि कोंकण, वस्ती महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत भारी बारिश की पेशेनगोई है। शिमाल मशरक़ी हिंद में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी भारी बारिश की वार्निंग जारी की गई है। देखिए, कल क्या था, एक आपका शो छत्तीसगढ़ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, वहां से एक ट्रफ बना हुआ था जो महाराष्ट्र से लेके बांग्लादेश तक था। तो उसके प्रभाव से क्या रहा कि कल महाराष्ट्र में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का हमने रेड अलर्ट दिया था। 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमारा अनुमान था और 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन रही। मुंबई में भी रही 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा। इवन पूना में भी हमने ऑरेंज अलर्ट दिया हुआ था, वहाँ भी काफ़ी रेनफॉल एक्टिविटी रहा, वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहा। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, अब वही साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे आके मध्य महाराष्ट्र में है, उसका आज भी प्रभाव रहेगा। इसलिए हमारा अनुमान है आज भी स्पेसिफिकली कोंकण रीजन में और मध्य महाराष्ट्र में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, गुजरात में भी आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में हंगामा। अपोजिशन के अरकान ने किया वॉकआउट। संजय राउत को हत्या की इज्जत मामले में 15 दिन की सजा, 25,000 का जुर्माना। सौम्याकृत ने किया खुशी का इजहार। क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई दवाएं, पैरासीटामोल, शुगर, हाई बीपी, कैल्शियम, D3 की गोलियां भी शामिल। लोगों में तशवीश की लहर। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से मामूलात जिंदगी दरम भरम। पीएम मोदी का पुणे का दौरा हुआ रद्द। और इतालवी वजीर-ए-आजम मौलोनी ने की फलस्तीन की हमायत, तो सीनेट को कर रही थी खिताब। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।